Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start lecture number 29 from chapter number 15, Sampling and Sampling Distribution. Today we are going to discuss advantages of sampling. Sampling is cheaper and time saving. Sampling saves labor due to reduced volume, so better trained and higher quality supervision can be employed for scientific technical processing and analyzing the limited data more accurately to get reliable results. More detailed information can be obtained by sampling. Sampling is the only method to obtain information when population is infinite. For example, finding the fish of 1 kg from an ocean, finding the contents of a mine, finding the vegetation on Siachen Glacier, etc. Sampling is the only method to obtain the data when measurements process physically damage or destroys the sampling units under investigation. For example, a doctor wants to blood test a housewife or a cook wants to check the salt or sweetness of the dish cooked. To check the lifetime of bulbs, if each and every bulb has to be tested, no bulb can be sent to the market. In all such examples, the testing material will ultimately destroy. Following up of non-responses is more easy in sampling. Sampling is often used to check the accuracy and completeness of the census. Sampling provides a measure of reliability of the sample estimate. Now, disadvantages or limitations of sampling. Being part of the population, sample results are less reliable than those of census. Faulty sampling frames and personal biases gives biased and misleading results. It is difficult to decide which method of sampling is the most suitable. Sometimes a complete count or census is necessary and sampling is not allowed. For example, in polio vaccination, conducting elections, collecting taxes, paper marking, sampling cannot be allowed. ऐसे जो मेथड है इनमें सैम्पलिंग हम नहीं कर, जैसे मर्दमशुमारी है उसमें हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते कि हम कुछ लोगों को चुन लें और उनको काउंट कर लें, सब के सब काउंट होंगे, ठीक है। इस तरह से पोलियो वैक्सीनेशन अगर देनी है तो पोलियो वैक्सीनेशन सब बच्चों को दी जाएगी, उसमें भी हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते कि 10 बच्चे चुन लिए जाएं उनको दी जाए और बाकियों को ना दी जाए। इस तरह से इलेक्शन जब होते हैं, वोट जब होते हैं तो वोट हर एक शहरी ने देना है, उसमें भी हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते कि फलां मोहल्ले से 5 लोग दे दें बाकी ना दें, ठीक है। इसी तरह से टैक्स अगर कलेक्ट करने हैं या पेपर मार्किंग है तो पेपर हर स्टूडेंट का पेपर मार्क किया जाएगा, उसमें हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते कि एक क्लास में 10 बच्चों का पेपर मार्क कर दें बाकियों को छोड़ दें, ठीक है। तो हर जगह सैम्पलिंग भी नहीं हम अप्लाई कर सकते सैम्पलिंग मेथड्स, ठीक है। तो कुछ जगहों पे सैम्पलिंग मेथड जो हैं वो अप्लाई होते हैं और बाज़ जगहों पे नहीं होते। Question number 15.8 from your exercise part A. The question is, a population consists of number 3, 7, 8, 12, 15. Find the mean and the standard deviation of the population. Random samples of size 2 are drawn from the population with replacement. Find the sampling distribution of the mean. Find the mean of sampling distribution of means and show that their standard deviation is equal to sigma over under root 2. Here n is equal to 5. 5 हमारे पास पॉपुलेशन है, नंबर्स जो हैं हमारे पास, और साइज 2 के सैंपल्स हमने ड्रा करने हैं विद रिप्लेसमेंट, तो स्मॉल n जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अब
जब भी हम सैम्पलिंग का क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन मीन। फर्स्ट स्टेप क्या है कि पॉपुलेशन मीन हम कैलकुलेट करेंगे और पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन मीन किसके इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब एक्स की वैल्यूज क्या हैं, 3, 7, 8, 12 एंड 15। 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास 45 आ जाता है, और डिवाइडेड बाय 5 म्यू आ जाएगा 9। सिग्मा स्क्वायर जो कि इक्वल होता है समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन के। ठीक है, म्यू हमारे पास 9 आ गया है। अब एक्स की वैल्यूज क्या है हमारे पास, फर्स्ट 3 है, फिर 7, 8, 12 और 15। 3 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 9 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो ये वैल्यू आती है 86 डिवाइडेड बाय 5, और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो सिग्मा के इक्वल आ जाएगा, और ये इक्वल आ जाता है 4.15 के। थर्ड स्टेप इसमें है नंबर ऑफ सैंपल्स, कि कितने सैंपल्स हमने बनाने हैं। अब विद रिप्लेसमेंट केस है, तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो है n रेज़ टू पावर n। अब कैपिटल N हमारे पास 5 है और स्मॉल n है 2। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25। 25 सैंपल्स जो हैं वो हमारे विद रिप्लेसमेंट बनेंगे। अब आपको सैंपल बनाना मैंने बताया हुआ है साइज 2 के, किस तरह से बनाएंगे, 3 3 3 7 3 8 3 12 3 15 7 3। अब 3 के साथ आपने बना लिए, ठीक है। अब 7 के साथ 7 3 7 7 7 8 7 12 7 15। अब 8 के साथ बनेंगे, 8 3 8 7 8 8 8 12 8 15। अब 12 के साथ 12 3 12 7 12 8 12 12 12 15। ठीक है, अब 15 के साथ 15 3 15 7 15 8 15 12 एंड 15 15, और साथ ही इनके मीन हमने फाइंड किए हैं। ठीक है, 3 प्लस 3 2 वैल्यूज हैं, दोनों को सम करना है और उनको कितनी 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। जैसे 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 को 3 पे डिवाइड 6 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास मीन आ गया 3। 7 प्लस 3 ये 10 हो गया, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह से 3 प्लस 8 जो है ये हमारे पास 11 हो गया, 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा 7.5। इसी तरह से 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास मीन आ जाएगा 9। 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा। इसी तरह से हम सारे के सारे जो हमारे पास जितने भी सैंपल्स हैं इनके हम मीन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे 8 प्लस 7 कितने हो गए, 17 17 जो है कितने हो गए, 15 हो गए। 8 प्लस 7 15 हो गए, सॉरी, और 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। 8 प्लस 8 16 हो गया, उसको 2 पे करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से ये सारे मीन जो हैं हम फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इस क्वेश्चन का, वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ठीक है, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह का टेबल हम बनाते हैं। क्या होता है, एक्स बार फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फिर अगला कॉलम हमें चाहिए एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का, और उससे अगला कॉलम हमें चाहिए एक्स बार स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। ठीक है, अब हम इन मीन्स में देखेंगे वैल्यूज, और इनको 1 टाइम लिखना है। इनको 3 है, 3 अगली वैल्यू 5 है, इसी तरह से 5.5 इसकी अगली वैल्यू इसमें है, इससे और इससे बड़ी फिर 7 है, फिर उससे बड़ी 7.5, फिर 8 है, 9 है, 9.5 भी है वैल्यू, फिर 10 है, 11 11.5, 12 13.5 भी है वैल्यू, और फिर 15 है। और अब हमने इसको देखना है कि 3 जो है वो इसमें कितनी बार लाई कर रहा है, 1 टाइम है। 5 देखेंगे वो कितनी दफ़ा आ रहा है, वो 2 टाइम्स। इसी तरह से 5.5 कितनी दफ़ा इसमें आ रहा है, वो 2 टाइम्स है। ठीक है, इसी तरह से 7 जो है वो कितनी टाइम्स है इसमें, 1 टाइम।
ठीक है। 7.5 कितनी दफ़ा आ रहा है इसमें, देखें इसमें काउंट करेंगे आप, 1 2 3 4, 4 टाइम्स इसमें आ रहा है 7.5। 8 जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, 8 देखें इसमें ओनली 1 टाइम, ठीक है। फिर आपने 9 देखना है, 9 है इसके बाद, 9 कितनी दफ़ा आ रहा है इसमें, 9 2 टाइम्स है इसमें, ठीक है। 1 और दूसरे किधर आ रहा है, ये है 9 2, ठीक है, 2 टाइम्स है। अब 9.5 को देखेंगे वो कितनी दफ़ा आ रहा है, वो भी 2 टाइम्स है। इसी तरह से 10 भी इसमें 2 टाइम्स आ रहा है, 11 भी 2 टाइम्स है, 11.5 भी 2 टाइम्स है, और 12 जो है वो 1 टाइम है, और 13.5 जो है वो भी 2 टाइम्स इसमें आ रहा है, और 15 जो है वो 1 टाइम है। और इस फ्रीक्वेंसी का सम देखें हमारे पास 25 आ रहा है, किसके इक्वल है, नंबर ऑफ सैंपल्स के इक्वल, वो भी हमारे 25 थे। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी उतना आना चाहिए जितना कि आपने नंबर ऑफ सैंपल, जितने सैंपल आपने बनाए हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आपने क्वेश्चन जो है उसमें कोई गलती की है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन को फिर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स बार, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हर फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने टोटल पे डिवाइड होती है, एफ ओवर समेशन एफ, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय 25, 2 डिवाइडेड बाय 25, 2 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 25, 4 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 25, इसी तरह से हर फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने टोटल पे डिवाइड हो जाएगी। और इस कॉलम का सम जो है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें म्यू एक्स बार फाइंड करना है, मीन ऑफ द सैंपल मीन, ठीक है, मीन ऑफ द सैंपल मीन, जो कि इक्वल होता है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है। अब एक्स बार और एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, एक्स बार के कॉलम को एक्स एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू एक्स बार के कॉलम में है 3, ठीक है, 3 है, और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 2 डिवाइडेड बाय 25, और अगली वैल्यू जो है वो क्या है, 5.5 है, और 5.5 है, और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 2 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वैल्यू है 7, और 7 की कोरेस्पॉन्डिंग जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 1 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम आ जाएगा, जो कि 3 डिवाइडेड बाय 25, 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 25। इसी तरह से 5.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 25, और 7 1 ज़ा 7, 7 डिवाइडेड बाय 25, और 7.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 25, ये आपके पास एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम आ जाएगा, और इसका सम हमारे पास आ रहा है 225 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। हमने इसमें म्यू एक्स बार के फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दी, और इसको डिवाइड करने से हमारे पास ये इक्वल टू 9 आ रहा है, ठीक है। हाँ, और हमारा मीन जो है यहाँ पे भी पॉपुलेशन मीन भी हमारा 9 आ रहा था, और अब मीन ऑफ सैंपल मीन भी हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। और ये इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि हमेशा विद रिप्लेसमेंट केस है या विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल लिए गए हैं, दोनों में म्यू एक्स बार जो है वो म्यू के इक्वल होता है। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर हमने फाइंड करना है, जो कि इक्वल होता है समेशन एक्स बार स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वेयर अंडर रूट के, ठीक है। अब इसमें समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार हमें चाहिए, तो उसके लिए हम कॉलम फाइंड करेंगे एक्स बार स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का, ठीक है, कि एक्स बार का स्क्वेयर लेंगे, 3 का स्क्वेयर हमने लिया 9 हो गया, 9 को हम 1 बाय 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बाय 25 फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू है 5
का स्क्वायर 25 आ जाएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 50 डिवाइडेड बाय 25। इस तरह से हमारे पास पूरा कॉलम आ जाएगा कि एक्स बार की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एक्स बार के कॉलम को हम एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा एक्स बार स्क्वायर। एक्स बार का स्क्वायर लेते जाएंगे एक्स बार के कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं और उनकी कोरेस्पॉन्डिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कॉलम आ जाएगा एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार, ये आ गया। अब इसका सम हमने लेना है। सम हमारे पास आ रहा है 2240 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब हमने इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट करना है। समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर। अब समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार हमारे पास क्या आया है 2240 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, ये हमने पुट कर दी वैल्यू, माइनस म्यू एक्स बार की जगह उसकी वैल्यू जो कि 9 आई है 9 हमने पुट की, उसका होल स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आती है √8.6। ठीक है, और अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास सिग्मा एक्स बार इक्वल आ जाएगा 2.93 के। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करना है इसको। म्यू एक्स बार हमें पता है हमेशा म्यू के इक्वल होता है और हमारे दोनों जो ये इक्वल आ रहे हैं, पॉपुलेशन मीन भी और मीन ऑफ द सैंपल मीन भी। ठीक है, दोनों 9 आ रहे हैं। अब हमने स्टैंडर्ड एरर को जो है हमने देखना है जो कि इक्वल होता है विद रिप्लेसमेंट केस में। उसने कहा है ना कि आप इसको जो है वो बताएं कि जो इक्वल है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मीन ऑफ द सैंपल मीन वो इक्वल है सिग्मा और अंडर रूट एन, और एन हमारे पास 2 है। सिग्मा और अंडर रूट 2 के इक्वल है और सिग्मा हमारे पास क्या आ रहा है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 4.15 आ रहा है। अंडर रूट 2 हमने लिया तो वो हमारे पास आ रहा है 2.93 जो कि सिग्मा एक्स बार हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया उसके इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है। ठीक है, बस यहाँ तक ही आपने क्वेश्चन करना होता है। ये सारे स्टेप्स हैं, आखिर में आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। ठीक है, यह है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन आपने किया है। Question 15.8 Part B from your exercise. Question is given the following population distribution x 4, 8, 12, 16 and f of x 1/6, 2/6, 2/6 and 1/6. ये टेबल आपको दिया हुआ है इसमें। First part is find the sampling distribution of the sample means x bar. If sample of two numbers is taken without replacement, compute number 2, compute the mean and variance of sampling distribution of x bar and verify mu x bar is equal to mu and sigma square x bar is equal to sigma square by n into n minus n over n minus 1. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि एफ ऑफ एक्स इसके साथ दिया हुआ है और एक्स दिया हुआ है। एक्स तो चलो पॉपुलेशन है आपके पास और एफ ऑफ एक्स साथ दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखें, आपके पास x की वैल्यू 4 है और उसकी आगे जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो है 1/6। ठीक है, 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है और इसी तरह से 8 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 2/6। 12 की प्रोबेबिलिटी भी 2/6 है और 16 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी जो जब दी हुई होती है तो इसका मतलब है कि कितनी बार वो वैल्यू रिपीट हो रही है उसमें। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें ये बता रही है। अब 4 जो है वो 1 टाइम है इसमें, 8 जो है वो 2 टाइम्स है इसमें। ठीक है, और 12 जो है वो भी 2 टाइम है और 16 इसमें 1 टाइम है। ठीक है, हमारे पास अब पॉपुलेशन क्या बन जाएगी 4, 8, 8, 12, 12, 16। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब आपने उसी तरह से बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स आपने लेने हैं। अब कैपिटल N जो है यहाँ आपके पास कितना है 6 है और साइज 2 के सैंपल आपने बनाने हैं तो स्मॉल n आपके पास कितना हो गया 2 और पॉपुलेशन आपके पास वैल्यूज कौन सी हैं 4, 8, 8, 12, 12, 16।
ठीक है। म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। आपने फर्स्ट स्टेप में क्या म्यू फाइंड करना है। अब इसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज क्या थी, यही थी कि आपने इस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक इन वैल्यूज को आपने लिखना है। ठीक है, आपने ये देखना था। अब आप देखें इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, पॉपुलेशन मीन आपने फाइंड किया। 4 + 8 + 8 + 12 + 12 + 16 डिवाइडेड बाय 6, आपके पास म्यू आ गया 10। अब आपने पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है, जिसका फार्मूला होता है समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और ये इक्वल होगा 4 - 10 होल स्क्वायर प्लस 8 - 10 होल स्क्वायर प्लस 8 - 10 होल स्क्वायर प्लस 12 - 10 होल स्क्वायर प्लस 12 - 10 होल स्क्वायर प्लस 16 - 10 होल स्क्वायर। और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर की, तमाम वैल्यूज को प्लस करने के बाद और 6 पे डिवाइड करने के बाद 14.67। ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें है कि नंबर ऑफ सैंपल्स, आपने कितने सैंपल्स बनाने हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, इन विदाउट रिप्लेसमेंट केस द फार्मूला इज NCN। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स फाइंड करने के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट केस में जो फार्मूला है वो क्या है, NCN। अब कैपिटल N आपके पास 6 है और स्मॉल n है 2, तो 6C2 जब आप कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे तो ये आपके पास इक्वल टू 15 आता है। ठीक है, यानी 15 सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट आपने बनाने हैं। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि आप रेपिटेशन नहीं होती, पीछे की तरफ नहीं जाते हैं, बस आगे ही आगे चलते रहते हैं। अब क्या करेंगे, पहले 4 के साथ आपने बनाने हैं, 4 8 4 8 4 12 4 12 4 16। ठीक है, अब 8 के साथ बनेंगे, अब पीछे नहीं आएंगे, 8 4 के साथ नहीं बनाएगा, आगे चलेगा, 8 8 8 12 8 12 8 16। ठीक है, अब दूसरा 8 बनाएगा, 8 12 8 12 8 16। ठीक है, अब 12 बनाएगा, पहले वाला 12 जो है, 12 12 12 16, फिर अब अगला 12 बनाएगा, 12 16। ठीक है, तो ये आपके पास 15 सैंपल जो हैं ये बन गए साइज 2 के विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इनके मीन फाइंड करने हैं। मीन कैसे फाइंड करते हैं कि दो वैल्यूज हैं, दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया तो मीन आ जाएगा। 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आ गया मीन। इस तरह से नेक्स्ट भी 4 + 8 है और डिवाइडेड बाय 2 तो 6 आ जाएगा। 4 + 12 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तमाम x बार आपने फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट जो इसमें स्टेप है वो क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप पहले क्या लिखते हैं, एक्स बार का कॉलम है, फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार, और फिर म्यू एक्स बार के लिए आपको चाहिए एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार के लिए आपको चाहिए एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम। ठीक है, अब एक्स बार में आप ये मीन जो आपने लिए सैंपल्स के, इनमें से आपने वैल्यूज लिख ली। सबसे छोटी वैल्यू 6 है, उससे बड़ी 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 11 है, 12 है, 13 14 15। ठीक है, सॉरी 13 नहीं है, 6 है, 8 है, और वैल्यू है उसके बाद 10, 10 के बाद है 12, और 12 के बाद है 14। ये वैल्यूज हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी आपने देखनी है। 6 कितने टाइम्स इसमें आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। 10 कितनी दफ़ा है इसमें, 5 टाइम्स। इन मीन में आप देखेंगे कितनी दफ़ा 5 आ रहा है। 12 कितनी दफ़ा है, 3 टाइम्स इसमें है, और इसी तरह से 14 जो है वो 2 टाइम्स। और फ्रीक्वेंसी का सम देखें आपका 15 आ रहा है, और नंबर ऑफ सैंपल्स भी आपके 15 थे। ठीक है, अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार फाइंड करना है। 2 डिवाइडेड बाय 15। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट नहीं लगाते, इसमें एफ एक्स बार इस तरह लिख देते हैं। एफ एक्स बार और एफ ऑफ एक्स बार में फ़र्क है, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इट्स टोटल, यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आपने पढ़ा, इस क्या होती है कि हर फ्रीक्वेंसी अपने टोटल पे डिवाइड होती है। 2 डिवाइडेड बाय 15, 3 डिवाइडेड बाय 15, 5 डिवाइडेड बाय 15, 3 डिवाइडेड बाय 15 एंड 2 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है।
अब आपने म्यू एक्स बार मीन ऑफ द सैंपल मीन्स आपने फाइंड करना है, और जिसका फार्मूला होता है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। इसके लिए आपको कॉलम चाहिए एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का, यानी एक्स बार के कॉलम को आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है एफ ऑफ एक्स बार उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का, और उसका सम आ रहा है 150 डिवाइडेड बाई 15। आपने इस फार्मूला में म्यू एक्स बार के फार्मूला में इसको पुट किया तो आपके पास ये म्यू एक्स बार इक्वल टू 10 आ रहा है। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जिसका फार्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपने एक्स बार स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम आपको चाहिए, एक्स बार का स्क्वायर करते जाना है और एफ ऑफ एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 36, फर्स्ट वैल्यू एक्स बार की 6 है, 6 6 36, और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स बार क्या है 2 डिवाइडेड बाई 15। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाता है, तो 72 डिवाइडेड बाई 15 फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम में। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू 8 है एक्स बार की, उसका स्क्वायर और फिर उसको 3 डिवाइडेड बाई 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 192 डिवाइडेड बाई 15। नेक्स्ट है 10, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 हो जाएगा, 100 को 5 बाई 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाई 15। इस तरह से ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसका सम हमारे पास आ रहा है 1588 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 1588 डिवाइडेड बाय 15, ये थोड़ा सा आपको मिसप्रिंट सा है, ये 8 है। ठीक है, 1588 डिवाइडेड बाय 15 आपने इसको डिवाइड किया आपके पास, और म्यू एक्स बार की वैल्यू 10 है, वो 10 पुट करेंगे, उसका होल स्क्वायर लेंगे वो 100 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 105.87, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 5.87, ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू आ जाती है। लास्ट स्टेप इसका है कि हमने वेरीफाई करना है इसको, म्यू एक्स बार चाहे विद रिप्लेसमेंट केस हो या विदाउट रिप्लेसमेंट केस हो, म्यू एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू। और ये देखें हमारा ये भी 10 आ रहा है और पॉपुलेशन मीन जो हमने फाइंड किया था वो भी 10 है। अब हमने स्टैंडर्ड एरर या वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन्स जो है उसको हमने वेरीफाई करना है, तो वो इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू, विदाउट रिप्लेसमेंट केस में किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। फर्क क्या है, विद रिप्लेसमेंट में ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर जो है ये उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, विदाउट रिप्लेसमेंट केस में ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ये क्या है, n माइनस एन ओवर एन माइनस 1, ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया वो है 5.87, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 14.67 डिवाइडेड बाय स्मॉल n हमारे पास है 2। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल N 6 है, 6 माइनस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 हमारे पास 5 आ जाएगा, 4/5। इस सारे को सॉल्व करें तो ये हमारे पास ये भी 5.87 के इक्वल आता है। तो हमने अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। Question number 15.9 from your exercise. The question is, draw all possible random samples of size 2 with replacement from the population 1, 2, 3, 4, 5. Show that mean of sample means is equal to the population mean and variance of sample means is half of the population variance. ये 2011 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, important question है। Here n is equal to capital N is equal to 5 and small n is equal to 2. Population हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमने पॉपुलेशन मीन और फाइंड करना है, और पॉपुलेशन वेरिएंस सेकंड स्टेप पे हमने फाइंड करना है। पॉपुलेशन मीन हमने फाइंड किया इसका, तो वो हमारे पास 3 आ गया, और पॉपुलेशन वेरिएंस हमारे पास आ रहा है 2 के इक्वल। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स हमने फाइंड करने हैं, और विद रिप्लेसमेंट केस है तो 5 raised to power 2 हमारे पास 25 सैंपल्स बनेंगे विद रिप्लेसमेंट। ठीक है,
हमने 25 सैंपल्स बना लिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है। इसी तरह से फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ और 5 के साथ, ये हमने 25 सैंपल्स बना लिए और फिर उनके मीन हमने कैलकुलेट कर लिए। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में उसी तरह से फिर हमने एक्स बार, उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एक्स बार और नेक्स्ट कॉलम एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम फाइंड किया, फिर एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम फाइंड किया। अब हमने मीन ऑफ द सैंपल मीन म्यू एक्स बार जो कि इक्वल होता है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार के, और हमारे पास एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का जो सम आ रहा है वो है 75 डिवाइडेड बाय 25 जो कि इक्वल टू 3 आ गया। और यहाँ आप देखें हमारा पॉपुलेशन मीन भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार जो है ये इक्वल होता है समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्क्वायर के। अब एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार का जो कॉलम है उसका सम है हमारे पास 250 डिवाइडेड बाय 25 माइनस म्यू एक्स बार की वैल्यू है 3 का स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। अब हमने वेरीफाई करना है, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एक्स बार भी हमारा 3 आ रहा है और म्यू भी हमारा 3 है, ठीक है। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार विद रिप्लेसमेंट केस में किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन के। सिग्मा स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ रहा था, 2 के इक्वल आ रहा था, और स्मॉल एन भी हमारा 2 है, तो 2/2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इधर सिग्मा स्क्वायर एक्स बार हमारा देखें 1 आ रहा है, तो दोनों इक्वल आ गए हैं। We have studied sampling distribution of mean. Now we are going to discuss sampling distribution of difference between means. Difference between two population means. Let two independent random samples of sizes n1 and n2 are drawn from two populations having means mu1 and mu2 and variances sigma 1 square and sigma 2 square respectively. Let x1 be the means of all possible samples drawn from the first population and x2 bar be the means of all possible samples drawn from the second population. The differences obtained from all possible pairs of x1 bar minus x2 bar will also be the random variable, and the probability distribution formed by these differences is called the sampling distribution of x1 bar, which has the following properties. First है with replacement and second one is without replacement. With replacement, mu x1 bar minus x2 bar is equal to mu1 minus mu2, and sigma square x1 bar minus x2 bar is equal to sigma 1 square over n1 plus sigma 2 square over n2, and standard error of x1 bar minus x2 bar which is equal to sigma x1 bar minus x2 bar is equal to under root sigma 1 square by n plus sigma 2 square divided by n2, ठीक है। sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2. Without replacement case, mu x1 bar minus x2 bar is equal to mu1 minus mu2, and sigma square x1 bar minus x2 bar is equal to sigma 1 square over n1 into n1 minus n1 divided by n1 minus 1 plus sigma 2 square over n2 into n2 minus n2 divided by n2 minus 1, and standard error of x1 bar minus x2 bar it is equal to sigma x1 bar minus x2 bar is equal to under root sigma 1 square over n1 into n1 minus n1 divided by n1 minus 1 plus sigma 2 square divided by n2 into n2 minus n2 over n2 minus 1.
Example 15.5 on page 170 from your book. Draw all possible random samples of size n1 is equal to 2 with replacement from a finite population 3, 4, 5. Similarly, draw all possible random samples of size n2 is equal to 2 with replacement from another finite population 1, 2, 3. A part इसका है कि find sample means x1 bar and x2 bar and the possible differences between the sample means of the two populations. B part इसका है form a sampling distribution of x1 bar minus x2 bar and compute its mean and variance. C part है verify that mu x1 bar minus x2 bar is equal to mu1 minus mu2 and sigma square x1 bar minus x2 bar is equal to sigma 1 square n1 plus sigma 2 square divided by n2. ये 2010 के पेपर में एग्जाम्पल आ चुकी है। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। इसमें क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन 1 जो है n1 उसकी वैल्यूज कितनी हमें दी हुई हैं, 3 दी हुई हैं। तो n1 भी हमारे पास 3 है और पॉपुलेशन 2 जो है वो भी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं उसमें, ठीक है। और साइज 2 है, n1 भी 2 साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट सैंपल्स बनाने हैं पॉपुलेशन 1 में, और जो n2 है वो भी हमारे पास 2 है, साइज 2 के ही सैंपल बनाने हैं। अब पॉपुलेशन 1 क्या है हमारे पास 3, 4, 5 और पॉपुलेशन 2 है हमारे पास 1, 2, 2, 3, ठीक है। अब हम वही फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वहाँ हमारे पास सिंपल एक पॉपुलेशन होती थी, यहाँ अब 2 पॉपुलेशन है और 2 सैंपल जो हैं 2 हम पॉपुलेशन के हमने ड्रा करने होंगे। और इसमें पॉपुलेशन मीन भी हम 2 फाइंड करेंगे और 2 जो हैं वो वेरिएंसेस हम दोनों पॉपुलेशंस के हम फाइंड करेंगे। μ1 हमारा क्या है, पॉपुलेशन मीन फॉर फर्स्ट पॉपुलेशन, ठीक है। इट इज इक्वल टू समेशन x1 डिवाइडेड बाय n1, ठीक है। अब उसमें क्या है वैल्यूज 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास μ1 आ गया 4। अब हमने सेकंड पॉपुलेशन जो है उसका म्यू फाइंड करना है, उसका मीन फाइंड करना है, जो कि इक्वल है समेशन x2 डिवाइडेड बाय n2 के, और वो वैल्यूज हैं 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, और ये इक्वल है 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2 के, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट पॉपुलेशन का हम वेरिएंस फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है 0.67 के इक्वल 2/3, जो कि इक्वल हो जाएगा 0.67। इसी तरह से सिग्मा 2 स्क्वायर जो है वो भी हमारे पास आ रहा है 0.67 के इक्वल। थर्ड स्टेप जो होगा, हम सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स फाइंड करेंगे फॉर पॉपुलेशन 1, ठीक है। और विद रिप्लेसमेंट चूंकि है तो उसका फार्मूला क्या होगा, n1 n1 स्मॉल n1, ठीक है। n1 हमारे पास जो पॉपुलेशन 1 की जो वैल्यूज हैं वो कितनी हैं, 3 हैं, और साइज 2 के सैंपल ड्रा करने हैं तो 3 3 9 सैंपल इसके बनेंगे विद रिप्लेसमेंट, सॉरी, ठीक है। अब इसमें 3 3 3 4 3 5, इसी तरह से 4 3 4 4 4 5 और 5 3 5 4 5 5, ये हमारे पास सैंपल्स बन जाएंगे 9 सैंपल्स, और इनके मीन हमने जो है वो भी फाइंड कर लेने हैं। फिर सेकंड पॉपुलेशन हमने देखनी है। सेकंड पॉपुलेशन का हमने सैंपल जो है, पहले नंबर ऑफ सैंपल्स के कितने होने चाहिए, वो होगा n2 स्मॉल n2, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट ही हमने बनाने हैं, तो 3 ही वैल्यूज हैं सेकंड पॉपुलेशन में भी, और साइज 2 के सैंपल बनाने हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 सैंपल्स बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3, और इनके कोरेस्पॉन्डिंग मीन्स भी हम फाइंड कर लेंगे। अब हमने एक टेबल बनाना है जो कि डिफरेंसेस को शो करेगा x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है। अब यहाँ ऊपर जो हमने जो रो में ऊपर के कॉलम में जो हमने वैल्यूज लिखी हैं वो हमारी हैं x1 बार की, और जो हमने साइड पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये हमारी x2 बार है,
ठीक है। x1 बार हमारे कौन से हैं, जो हमारी फर्स्ट पॉपुलेशन के जो हमारे आए थे सैंपल्स के मीन, और सेकंड पॉपुलेशन के जो सैंपल्स के मीन है वो हमारे x2 बार है। ठीक है, हम इसी तरह से उनको जैसी हैं वो वैल्यूज उसी तरह एज इट इज हमने यहाँ पे लिख देना है उनको, इधर और इधर। अब हम इनके डिफरेंसेस फाइंड करेंगे। x1 बार में से x2 बार को माइनस करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 3.0 में से 1.0 को, तो क्या आ जाएगा 2.0। इसी तरह से 3.5 में से हम 1.0 को फाइंड करेंगे तो 2 पॉइंट माइनस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, और 3.5 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो अगले उसमें रो में देखें 2.0 आ जाएगा। इसी तरह से x1 बार में से हम x2 बार की वैल्यूज को माइनस करते जाएंगे। जैसे 3 में से 1 को माइनस किया, फर्स्ट वैल्यू 2 आ गई, 3 में से फिर हमने 1.5 को माइनस किया तो 1.5 आ गया, फिर अगली भी 1.5 है, 3 में से वो माइनस करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 3.0 में फिर 2.0 माइनस करेंगे तो 1.0, और सो ऑन। इसी तरह से डिफरेंसेस जो हैं हम सारे फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो इसमें होगा वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन्स, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, वो हमने बनानी होगी। अब इसमें सबसे अहम ये टेबल है जो कि आपको नज़र आ रहा है x1 बार माइनस x2 बार का। ठीक है, ये आपने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एहतियात से ये बनाना होगा ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, x1 बार की जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से x2 बार की तमाम वैल्यूज को माइनस करते जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे है, लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ 5.0 है, तो 5.0 में पहले 1.0 माइनस किया तो हमारे पास 4.0 वैल्यू आ गई। 5.0 में 1.5 माइनस किया तो हमारे पास 3.5 आ गई। 5.0 में फिर 1.5 माइनस किया तो हमारे पास 3.5 अगली वैल्यू आ गई। इसी तरह से 5.0 में 2.0 माइनस किया तो 3.0 आ गई। इसी तरह से ये तमाम कॉलम्स की वैल्यूज जो हैं हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। ठीक है, जिस तरह हम सिंपल के लिए बनाते होते थे, अब डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए। ठीक है, कॉलम सबसे पहला कौन सा होगा, x1 बार माइनस x2 बार। अब हमारे पास ये जो पीछे हमने टेबल बनाया x1 बार माइनस x2 बार का, इसमें जितनी भी ये सारी अंदर फ्रीक्वेंसीज जितनी भी ये आई हैं, डिफरेंसेस हमारे पास आए हैं इस टेबल के अंदर, उनको हमने लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा इसमें क्या है, इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद 0.5 है, फिर उसके पास बाद 1.0 है, फिर 1.5 है, फिर 2.0 है, फिर 2.5 है। ठीक है, इसी तरह से ये वैल्यूज हमारे पास जो है वो आ रही हैं। फिर 3.0 है, 3.5 भी है, और फिर 4.0 है सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसकी उसी तरह से जिस तरह हम सिंपल में करते थे इसमें भी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब 0 हम उस टेबल के अंदर देखेंगे कितनी दफ़ा उसमें आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से फिर हम देखेंगे 1 टाइम आ रहा है। 0.5 हम ढूंढेंगे उसमें कितनी दफ़ा आ रहा है उस टेबल में डिफरेंसेस वाले में। ठीक है, वो 4 टाइम आ रहा है। इसी तरह से 1.0 कितनी दफ़ा आ रहा है, 10 टाइम्स। 1.5 कितनी दफ़ा आ रहा है, 16 टाइम्स। 2.0 आ रहा है 19 टाइम्स। ठीक है, 2.5 आ रहा है 16 टाइम्स। 3.0 10 टाइम्स। 3.5 4 टाइम्स, और 4.0 1 टाइम। और इस फ्रीक्वेंसी का सम देखें आ रहा है 81। आपके पास 9 सैंपल बने थे पॉपुलेशन 1 के, और 9 सैंपल बने थे पॉपुलेशन 2 के, तो 9 9 81 होता है। तो यहाँ इसका जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो भी 81 आ रहा है। अब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और उसको किस तरह लिखेंगे, f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। ठीक है, वो कॉलम हम हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे आपने डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाई 81, 4 डिवाइडेड बाई 81, 10 डिवाइडेड बाई 81 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसका सम इक्वल टू 1 होगा। अब हमें म्यू x1 बार माइनस x2 बार जो है, जिसका फार्मूला क्या है, समेशन x1 बार माइनस x2 बार इंटू एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार।
अब ये कॉलम हमने फाइंड करना है। x1 बार माइनस x2 बार के कॉलम को हमने f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 0 को हम 1 डिवाइडेड बाई 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0.5 को 4 डिवाइडेड बाई 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 81। इस तरह से 1.0 को 10 इंटू 81 10 डिवाइडेड बाई 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से ये पूरा कॉलम आएगा और इसका सम हमारे पास आ रहा है 162 डिवाइडेड बाई 81 और म्यू x1 बार माइनस x2 बार हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे जो है सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार जिसका फार्मूला होता है समेशन x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर। अब म्यू x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है 2 का होल स्क्वायर ले लेंगे 4 आ जाएगा। अब हमें कॉलम चाहिए x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। ठीक है, हम x1 बार माइनस x2 बार का जो फर्स्ट कॉलम है इसका स्क्वायर लेते जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ x1 बार माइनस x2 बार के कॉलम से, थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से, फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर लेंगे और उसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा लास्ट कॉलम और इसका सम हमारे पास आ रहा है 378 डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, ये वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार में। ये 371 डिवाइडेड बाई 81 माइनस म्यू x1 बार माइनस x2 बार 2 के इक्वल है। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.67। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है कि म्यू x1 बार माइनस x2 बार जो है हम कहते हैं कि ये इक्वल होगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 के। जिस तरह सिंपल में हम कहते थे ना कि म्यू x बार जो है वो इक्वल है म्यू के, तो यहाँ पे म्यू x1 बार माइनस x2 बार इक्वल होगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 के। ठीक है, और ये दोनों केसेस में ये भी इसी तरह से सेम होगा, सिर्फ फार्मूले में फ़र्क होगा तो वो किसके होगा, वेरिएंस के या स्टैंडर्ड एरर के। ठीक है, अब म्यू x1 बार माइनस x2 बार हमारे पास 2 आ रहा है। अब म्यू 1 हमारे पास पॉपुलेशन मीन जो है वो 4 है और पॉपुलेशन मीन सेकंड पॉपुलेशन का जो मीन है वो हमारे पास 2 है, तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2। तो अब देखें ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें है वो है हमने किसको देखना है, वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन, उसको हमने देखना है और उसका फार्मूला क्या है विद रिप्लेसमेंट केस में सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। अब ये जो हमारी सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार जो हमने कैलकुलेट किया है पीछे वो क्या है 0.67 और सिग्मा 1 स्क्वायर की वैल्यू 0.67 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर की जो वैल्यू पीछे हमारे पास आई है वो 0.67 है, उसको भी n2 जो है वो 2 है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.67 आ जाता है। तो यहाँ हमने वेरीफाई कर दिया दोनों इक्वल आ गए हैं। क्वेश्चन है 15.15 फ्रॉम योर एक्सरसाइज। Question is, let the values of the variable x1 bar represent the means of random samples of size n1 is equal to 2 with replacement drawn from the finite population 3, 4, 5. Similarly, let x2 bar represent the means of random samples of size n2 is equal to 3 with replacement drawn from the population 0, 3. Construct a sampling distribution of x1 bar minus x2 bar. Show that mu x1 bar minus x2 bar is equal to mu 1 minus mu 2 and sigma square x1 bar minus x2 bar it is equal to sigma 1 square over n1 plus sigma 2 square over n2। अब इसमें हमने सबसे पहले डाटा लिखना है। पॉपुलेशन 1 है हमारे पास 3, 4, 5 और पॉपुलेशन 2 है 0, 3। n1 है हमारे पास, कैपिटल n1 3 है और स्मॉल n1 इज इक्वल टू 2 और कैपिटल n2 जो है n2 से हमने उसको सेकेंड पॉपुलेशन को हम डिनोट कर रहे हैं वो इक्वल है 2 वैल्यूज़ हैं उसकी और साइज 3 के सैंपल लेने हैं तो स्मॉल n2 जो होगा हो जाएगा वो इक्वल टू 3।
अब हमने पॉपुलेशन मीन जो है फाइंड करना है फॉर पॉपुलेशन 1 जो है μ1 और फॉर पॉपुलेशन 2 μ2। ठीक है, तो μ1 हमारे पास आ रहा है 4 और μ2 हमारे पास आ रहा है 1.5। इसी तरह से फिर सिग्मा 1 स्क्वायर हमने फाइंड करना है वेरिएंस फॉर पॉपुलेशन 1 एंड वेरिएंस फॉर पॉपुलेशन 2। तो वेरिएंस फॉर पॉपुलेशन 1 हमारे पास आ रहा है 0.67 और वेरिएंस फॉर पॉपुलेशन 2 ये हमारे पास आ रहा है 2.25। ठीक है, अब मैं आपको ये फार्मूला आपको अब आता है। ठीक है, आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, वेरिएंस भी पढ़ चुके हैं, मीन भी आपको पता है और यहाँ भी कितने क्वेश्चन आपको बताए, लेकिन अब आपको ये फार्मूला खुद पता है, ये आपने फाइंड करना है। थर्ड स्टेप जो इसमें आएगा वो आपने नंबर ऑफ सैंपल्स फाइंड करने हैं फॉर पॉपुलेशन 1 एंड फॉर पॉपुलेशन 2। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स n1 रेज टू पावर n1। ठीक है, फॉर पॉपुलेशन 1 कितनी वैल्यूज हैं, 3 हैं और साइज 2 के सैंपल लेने हैं तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा विद रिप्लेसमेंट केस है। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 सैंपल्स बनेंगे। क्या होंगे, 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 5 5। ठीक है, ये 9 सैंपल्स बन जाएंगे और इनके कोरेस्पॉन्डिंग आपने मीन कैलकुलेट कर दिए। पॉपुलेशन 2 जो है अब उसके हमने बनाने हैं सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल्स पहले कितने हैं, n2 हमारे पास जो है कैपिटल N2 2 है और स्मॉल n2 जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 सैंपल्स बनेंगे। क्या होंगे, 0 0 0 यानी 0 0 3 0 3 0 0 3 3 कैसे बनेंगे, पहले 0 के साथ सारे बनेंगे, फिर 0 0 3। आप 3 को बीच में रखें, पहले 0 को पहले शुरू वाला चेंज होता है, ये मैंने आपको बताए थे ना। फिर आपने दरमियान वाला चेंज करना है, फिर ये जो फर्स्ट वाला होगा ये चेंज होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले चेंज हुआ, देखें 0 और 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 0 ही हमने लेना है। अब आपने क्या करना है कि दरमियान में 3 लेके आना है, 0 की जगह अब 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 3 0 0 3 3। ठीक है, अब आपने 3 के साथ बनाने हैं सैंपल, 3 0 0 3 0 3 3 3 0 3 3 3। ठीक है, और इनके कोरेस्पॉन्डिंग मीन जो हैं ये आपने फाइंड कर लेने हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या है कि पॉसिबल डिफरेंसेस आपने फाइंड करने, x1 बार माइनस x2 बार आपने फाइंड करना है। उसी तरह से आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं x1 बार की आपने वो सामने लिख देनी है और x2 बार की वैल्यूज़ जो हैं आपने साइड पे ये लिख देनी है सारी, जितने भी आपने मीन फाइंड किए हैं। ठीक है, मीन आपके जो पॉपुलेशन 1 के जो सैंपल आपने लिए और उसके मीन जो फाइंड किए वो x1 बार हो गए और सेकंड पॉपुलेशन के जो आपने सैंपल बनाए और उसके आपने मीन लिए वो आपके x2 बार हो गए। ठीक है, आपने इसी तरह से उनको लिख देना है। उसमें आप ये नहीं करना कि रिपीट हो रही है वैल्यू, बेशक रिपीट होती रहे, वो लिखनी है आपने सारी एज इट इज जितनी भी वैल्यूज हैं। ठीक है, 9 पहली फर्स्ट वाली में 9 आपके पास मीन है तो वो 9 के 9 आप लिखेंगे और इसी तरह से सेकंड वाली में आपके पास 8 मीन्स आ रहे हैं तो वो 8 के 8 आप पूरे लिखेंगे। ठीक है, आपने फिर डिफरेंसेस उसी तरह से फाइंड करने हैं। किस तरह से, x1 बार में से x2 बार को माइनस करना है। x1 बार की पहली वैल्यू 3 है और x2 बार की पहली है 0, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखें उसके नीचे और इसके सामने आ रहा है। 3.5 में से 0 माइनस करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। इसी तरह से 4 में से 0 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब 3 में से 1 सेकंड वाली वैल्यू माइनस होगी तो 2 आ जाएगा। 3.5 में 1 माइनस करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से सारे डिफरेंसेस आपने फाइंड करने हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। आपने ये कॉलम बनाना है x1 बार माइनस x2 बार का और ये डिफरेंसेस जो हैं इनमें से ये आपने वैल्यूज जो हैं ये लिखनी है और फिर उसी तरह से फ्रीक्वेंसी बनानी है। और ये देखें इसका फ्रीक्वेंसी का सम जो है ये 72 आ रहा है। आपके पास 8 9 और 8 सैंपल्स बने थे तो 8 9 72, तो यहाँ पे सम भी आपका फ्रीक्वेंसी का 72 आ रहा है। नेक्स्ट आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का
कॉलम बनाना है, फिर x1 बार माइनस x2 बार इंटू एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का कॉलम, जिसका सम आपके पास आ रहा है 180 डिवाइडेड बाय 72। तो आपका म्यू x1 बार माइनस x2 बार इक्वल होगा समेशन x1 बार माइनस x2 बार इंटू एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार के, उसमें आपने ये वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, तो आपके पास म्यू x1 बार माइनस x2 बार आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट कॉलम वेरिएंस के लिए फाइंड करना है। सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार फाइंड करने के लिए हमें चाहिए कॉलम x1 बार माइनस x2 बार इंटू होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का, जो कि ये हमने फाइंड कर लिया। यानी x1 बार माइनस x2 बार फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर लेते जाना है और उसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट कॉलम आ जाएगा। ठीक है, जिसका सम आ रहा है 528 डिवाइडेड बाय 72। म्यू x1 बार माइनस x2 बार में वैल्यू हमने पुट की 280 डिवाइडेड बाय 72, तो हमारे पास ये मीन आ गया, मीन ऑफ द सैंपल मीन 2.5 के इक्वल आ गया। अब हम सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार जो कि इक्वल होता है समेशन x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब म्यू x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू ऊपर हमने कैलकुलेट की है 2.5, इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे और समेशन x1 बार माइनस x2 बार होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का जो कॉलम है उसका सम हमारे पास क्या है 528 डिवाइडेड बाय 72। तो ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू आ गई 1.08। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन में म्यू x1 बार माइनस x2 बार इक्वल होता है म्यू 1 माइनस म्यू 2 के। म्यू 1 जो है वो 4 है और म्यू 2 जो है वो 1.5 आया था हमारे पास, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये म्यू x1 बार माइनस x2 बार 2.5 आ रहा है और ऊपर देखिए हमने कैलकुलेट किए तो वो भी 2.5 आ रहा है। अब सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार विद रिप्लेसमेंट केस में किसके इक्वल होता है, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। ठीक है, सिग्मा 1 स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है और साइज n1 जो है वो 2 है, तो प्लस सिग्मा इसकी जो वैल्यू है सॉरी सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 जो है सिग्मा 1 स्क्वायर 1/2 आ रहा है और वो उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, सिग्मा 1 स्क्वायर हमारे पास कितनी आ रही थी वैल्यू, वो वैल्यू आ रही थी सिग्मा 1 स्क्वायर की हमारे पास 0.67 2/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 हमारे पास क्या है, n1 हमारे पास है 2। ठीक है, तो 2/3 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास ये इसके 2/3 इंटू 1/2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 1/3 आ जाएगा प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 2.25 हमने कैलकुलेट की है, डिवाइडेड बाय n2 जो है वो 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.08 के इक्वल। अब देखें ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन सिग्मा स्क्वायर x1 बार माइनस x2 बार वो भी हमारे पास 1.08 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने वेरीफाई कर दिया, क्वेश्चन हमारा ठीक है। स्टूडेंट्स, दिस इज योर टुडेज होम टास्क। Question number 15.8 Part C, 15.10, 15.12, 15.13, 15.14 from exercise. Solve these questions and send in your subject group.